पहलगाम हमले पर हिना खान का करारा जवाब। हिना ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, द वे दिस अटैक वॉज कंडक्टेड बाय हार्टलेस इनह्यूमन ब्रेन वॉश्ड टेररिस्ट्स हु क्लेम टू बी मुस्लिम्स इज बियॉन्ड appalling. As a Muslim, I want to apologize to all my fellow Hindus and my fellow Indians. जी हाँ, टेलीविजन की ग्लैमर्स दिवा हिना खान ने पहलगाम में हुए दरिंदगी भरे आतंकी हमले पर दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की, जिसमें हर शब्द दर्द, गुस्से और इंसानियत की पुकार से भरा हुआ था। हिना ने लिखा, condemnation, calls of compassion. Nothing means anything if we fail to accept the reality. If we don't accept what really happened, especially as Muslims, everything else is just talk. Simple talk, a couple of tweets and that's it. The way this attack was conducted by heartless, inhuman, brainwashed terrorists who claim to be Muslims is beyond appalling. I can't imagine if a Muslim was forced to revoke his religion at gunpoint and was killed after anyway. It breaks my heart, and as a Muslim I want to apologize to all my fellow Hindus and my fellow Indians. People who lost their lives, heartbroken as an Indian, heartbroken as a Muslim. I can't get over what happened in Pahalgam. It has affected me and my mental health. But it's not about me and it's not my pain. It's the pain of everyone who lost their loved ones. It's the pain every Indian is feeling. I am praying for their strength and peace. I am praying for the souls who we lost. And we must not mince words. I condemn it, I reject it, and I hate those who did it. Wholeheartedly, absolutely, unconditionally. Those who did this can follow any religion. They are not human beings for me. As embarrassed as I am for the act of some Muslims, I pray to my fellow Indians to not alienate all of us. All of us who call India our home and our motherland. If we end up fighting each other, we would be doing what they want us to do, to divide us, to keep us fighting, and we must not let that happen as Indians. And as an Indian, I stand with my nation, our security forces, and I support our country. As an Indian, I believe all religions are safe and sane in my beautiful country. I will support my country's resolve to avenge this unconditionally. No excuses, no questions. Kashmir, I see change. I see an urge to sustain normalcy. I see the pain and loss in the eyes of the regular Kashmiri. I see faith and loyalty for India in the heart of the young Kashmiri. I see a passion to do well and make India proud in the Kashmiri of today. I feel bad for the regular Kashmiri who is battered in all this hate. Relieved to see so many tricolors in the valley from the past few days. I appreciate the chance of love for India. I hope this continues forever. As a Kashmiri Indian, I appreciate how they positively support Kashmiri spirit of brotherhood, how they want to get out of this vicious cycle of hate and grow in life. I ask my fellow Kashmiris to extend this spirit and bring back our brothers and sisters from the Kashmiri Pandit community. Will you accept it? I do, wholeheartedly. My first vote, I wish that you not just support it but facilitate it. You proved that tourism was never a cultural invasion. It is in fact the source of livelihood of many Kashmiri houses. Now it's time we Kashmiris bring back our Kashmir where a Kashmiri Pandit lived like a family with their fellow Kashmiri Muslims. I believe in coexistence, period. Lastly, I want justice as an Indian, as a Muslim and as a human being. We all must come together and support India in these testing times. Let's not give them what they want. We must come together as one people. No politics, no divisions, no hate, no matter what. We are Indians first. Jai Hind. हिना ने अपने पोस्ट में साफ कहा कि अगर हम हिंदू मुसलमान बनकर आपस में लड़ने लगे तो यह उन्हीं दरिंदों की जीत होगी जो हमें बांटना चाहते हैं। इसी के साथ हिना ने अपील की कि मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, हमें एक दूसरे से नहीं उन दुश्मनों से लड़ना है। आपस में मत लड़िए वरना इनके इरादे कामयाब हो जाएंगे।
खास बात यह है कि हिना इस समय ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे चरण से बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नफरत के खिलाफ आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही अपनी हालिया कश्मीर यात्रा के बाद उन्होंने फैंस के लिए लिखा, ऑल दोज हु वर रियली कंसर्न्ड अबाउट माई वेयरअबाउट्स, आई एम सेफ एंड बैक। हिना की इस पोस्ट को देख फैंस कर रहे हैं अपने प्यार की बरसात। यही वजह है कि हिना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। करणवीर मेहरा की हिंदू मुस्लिम एकता वाली कविता पर एल्विश यादव का तंज, बोले पाकिस्तान से वोट आए थे क्या भाई, अब खुद बन गए ट्रोल्स के शिकार। जी हां, बिग बॉस 18 के विनर और टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर करणवीर मेहरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद करण ने एक भावुक कविता शेयर की, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, बस सबने इंसान ना होने की है कसम खाई। उनकी यह कविता सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और कुछ ही घंटों में उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव ने वीडियो पर तंज कसते हुए लिखा, पाकिस्तान से वोट आए थे क्या भाई, बस फिर क्या था। सोशल मीडिया पर आग लग गई। एल्विश का ये कमेंट लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने एल्विश को ही निशाने पर ले लिया। ट्विटर पर जमकर रिएक्शंस आने लगे। करणवीर मेहरा की जीत को लेकर पहले ही कई सवाल उठ चुके थे और अब एल्विश ने उसी मुद्दे पर तीर चलाया, लेकिन लगता है ये तीर उल्टा पड़ गया। अब देखना ये है कि एल्विश अपने बयान पर सफाई देंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे। बहुत मस्ती की हम लोगों ने ऑन सेट, बहुत मजा आया। कुछ नहीं है, पीजेस इसके होते थे, बोल के खड़ा रहता है कि हंसो ना हंसो इस बात पे, और फिर मैं इसका मन रखने के लिए हंस भी देती थी। मेरे दोस्त थे काफ़ी सारे। एक टाइम ऐसा था कि मेरा डाउनफॉल चल रहा था, सब ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं वो टाइम पे बहुत डिप्रेस था। मुझे इतना बैकलैश हुआ था एक टाइम पे, आई वॉज नॉट डूइंग वेल इन माई लाइफ एंड देयर वर 2 people जिन्होंने मेरे अंदर कभी फेथ नहीं खोया। इट्स ऑब्वियसली माई मॉम एंड माई डैड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो 2 लोग हैं तो फिर आप टेंशन फ्री ही हो। किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते किती। ओके, सो ये गुलाबी साड़ी जो मेरे साथ है ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मतलब यकीन नहीं होता कि ये कब रिलीज़ हुआ था, बिकॉज आज भी फ्रेश लगता है। और अब बारी है शाकी की, जो काफ़ी शेक कर रहा है लोगों को। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं संजू से बात करूँगी। ये आपने इनको गुलाबी साड़ी आज पहना दी है जो पुराने गाने की ऑफकोर्स याद दिलाती है, लेकिन ये शाकी क्या है? कि आप खुद ही देख लो YouTube पे जाके। यस, जब तक आपके मुंह से ना सुनेंगे ना, तब तक आपके फैंस को मजा नहीं आएगा। शिकी एक वाइब है
मुझे लगता है, जो लाइक सबको डांस करने को यार There is something, कुछ तो इसमें हिडन है राज जो मैं ईशा से बाद में जानूंगी, बट पहले आप बता Thing is hidden by. यस संजू ओके, मेरा नया गाना शेकी। एक वाइब है। एक्चुअली हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इतनी देर से ना संजू सिर्फ वन लाइनर आंसर दे रहे हैं। प्यार क्या है वो एक फीलिंग है, शेकी क्या है वो एक वाइब है। अच्छा चलो चलो फिर एक काम कर लेते हैं। संजू आज आपकी ये टीचर बन गई हैं और ये बताएंगे कि अगर मैंने जो सवाल पूछा कि शेकी क्या है तो ईशा इनको क्या आंसर देना है। हाँ, मैं एम पॉप निकाल के लाया हूँ, मराठी पॉप। उसमें एफ्रो बीट्स भी आप सुनिए और मैं मराठी गानों को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। ये मेरे वर्ड्स है। इसने बराबर सही बताया। सही बताया ना। Yes. तो क्या ये ईशा को देखकर ऐसे शेक हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, है क्या, क्यों इतना नर्वसनेस क्यों? Of course. या मेरा गाना है शेकी, इसलिए मैं थोड़ा शेक कर रहा हूँ आज। हाँ, मुझे लगा कि ये हॉटनेस जो बाजू में खड़ी है थोड़ा वो भी। बिल्कुल, मैं तो गिर गया था। ऐसा कुछ नहीं है हमारे, कुछ हॉटनेस कुछ नहीं, हमारी बहुत ब्रो वाइब है और हम ये बोलते रहते हैं ये बिड़ू व्हाट्सएप, ऐसा कुछ इसको नहीं लगता है। What is bro vibes by the way? Bro vibe is being chill together, like good friends and chilling. What's up man, क्या चल रहा है टाइप्स। अगर शेकन अगर मैं वर्ड लूँ तो इंसान कोई ऐसा इंसिडेंट होता है लाइफ में जो एकदम हिला देता है, हिल जाता है ऑन सीरियस नोट। तो संजू आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपकी ज़िंदगी या फिर लाइफ को एक नया मोड़ दे दिया या पूरी तरह से झिंझोर के रख दिया? अच्छा या बुरा? लर्निंग अच्छा भी कि बुरा मैं लाइफ में ना एक चीज़ है जो लाइक मेरे दोस्त थे काफ़ी सारे, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मेरा डाउनफॉल चल रहा था, तो सब ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ एक दो ही लोग थे। तो मैं वो टाइम पे बहुत डिप्रेस था, लेकिन एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे संभाला काफ़ी। तो वो चीज़ मेरे लिए ना बहुत लाइक क्या ही बताऊँ कि मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई है नहीं लाइफ में, लेकिन दो लोगों ने मुझे संभाला, वो मेरे लिए कैसे डील किया फिर आपने उस सिचुएशन को? सिर्फ दो लोग और पूरी दुनिया गायब? नहीं, क्या है ना, अगर रियल लोग हैं और एक भी है, जैसे हमारी माँ होती है, बचपन से हम बड़े होने तक माँ बाप दो ही तो होते हैं, कितना कुछ सिखा जाते हैं हमें। तो मुझे भी वही लगता है कि दोस्त लोग भी वैसे ही हैं। ईशा आपकी लाइफ में कोई ऐसा झिंझोड़ने वाला जहाँ से आपने एक नई शुरुआत की होगी या बहुत ज़्यादा सीख लिया हो लाइफ से? मेरी लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसे जो ट्रॉमेटाइजिंग टॉपिक्स होते हैं उनको दोबारा बार बार याद नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो मैं वो भी नहीं करना चाहूँगी, बट येस आई वुड लाइक टू से दैट संजू ने बोला कि वो दो लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। मुझे इतना बैकलैश हुआ था एक टाइम पे और आई वॉज नॉट डूइंग वेल इन माई लाइफ एंड बहुत चीज़ें ऊपर नीचे थी, मतलब बहुत इधर उधर हो गया था। मैं उसकी डिटेल में तो जाऊँगी ही नहीं, बट देयर वर टू पीपल जिन्होंने मेरे अंदर कभी फेथ नहीं खोया, दैट्स ऑब्वियसली माई मॉम एंड माई डैड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो दो लोग हैं तो फिर आप टेंशन फ्री ही हो कि यार दो लोग अगर हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मे बी लेटर ऑन जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा मैं कैसी इंसान हूँ, तो मे बी वो शायद कन्विंस हो जाएंगे। तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये नागिन और खतरों का क्या सीन है भाई? ऑलमोस्ट कंफर्म, मतलब मैंने तो हमको पता था कि कंफर्म हो गई है ईशा मालविया खतरों के खिलाड़ी में वो सांप बिच्छू को टच करने के लिए जा रही है। ऐसा मुझे नहीं पता एक्चुअली, ये न्यूज़ मुझे इधर उधर से ही मिल रही है, बट खतरों का पॉसिबिलिटीज़ कुछ हो सकती थी, बट खतरों का अभी खुद ही कुछ आई थिंक डाइसी चल रहा है। समथिंग हैपेंड बिटवीन बानी जैन एंड अमोल एंड समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट या देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन खतरों एंड नागिन। आई एम वर्किंग ऑन एक्सप्लोरिंग टू बिग स्क्रीन्स नाउ, सो आई थिंक मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। संजू व्हाट्स नेक्स्ट? यस, मेरे भी कुछ बॉलीवुड में मेरा डेब्यू रहेगा, ऐसे समझ लो आप। कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मेरे खुद के भी कुछ अच्छे कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, बॉलीवुड में इस गाने पर ईशा को छोड़ दो, अभी हमने नचा लिया इनको। किसके साथ या किसको इस गाने पे डांस कराना चाहेंगे? श्रद्धा कपूर। अच्छा क्यों भाई? मुझे मतलब लाइफ में ऐसा कोई जो होता है ना क्रश, तो तब से एक ही क्रश है मेरी, ऐसा लगता है।
लगता है। अच्छा, अब आपको अगर इनको रिप्लेस, हीरो को रिप्लेस करना रहे इस गाने में तो कौन? सिंगर को रिप्लेस कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी भाई। मैं मेरे पास ऑप्शन आएगा भी तो भी मैं संजू को रिप्लेस नहीं करूंगी, बिकॉज आई थिंक ही इज द परफेक्ट वन। ही संग द सॉन्ग रियली वेल एंड यही रहेंगे। देखा कितना डिप्लोमेटिक आंसर दिया। डिप्लोमेटिक नहीं, स्मार्ट बोलते हैं। आप तो जर्नलिस्ट हो भाई, आपको तो पता होगा। अच्छा चलो लास्टली एक हुक स्टेप हो जाए इसका। चलो ये गाएंगे, मैं स्टेप कर रही हूँ। रेडी? ओके। सगळ्यांशी हटके ती लय भारी नटलेली, लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली, वो वो एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते किती किती किती। खूप छान मैं इतना बोल सकती हूँ। सही बोला मैंने? यस, एक अगदी बरोबर, एकदम सुंदर। बरोबर? यस, बरोबर बरोबर बरोबर, खूप छान खूप छान। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। धन्यवाद। बघत राहा अब घर आमचं जाएंगे गाणं। अब, बाय। पिछले काफ़ी साल मैंने अपना बर्थडे बाहर ही बनाया। हम बाली में थे, एक बार हम थाईलैंड थे, एक बार हम मनाली थे। बट इवन इफ आई वॉज देयर, आई वॉज शूटिंग। वो बचपन में आप वो बुक होती थी ना, एवरीथिंग अबाउट मी, उसमें आप अपने सारे फ्रेंड्स से जो है वो अलग अलग लिखवाते थे। वो एक बुक है जो मैंने संभाल के रखी है। मेरी फैमिली मेरे से पिछले 15 दिन से पीछे पड़ी, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। इफ़ आई नीड एनीथिंग आई विल बाय। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक कोलाज बना के गाइस, मतलब मैं सब पे रिएक्ट करूँगी, सब पे रिप्लाई करूँगी। हाय, मैं हूँ समीक्षा सूद। थैंक यू थैंक यू। जन्मदिन ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? लास्ट ईयर मेरा जन्मदिन जो है वो मैं काफ़ी डाउन थी, तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि हाउ बर्थडेज आर इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वन दैट डे व्हेन यू कैन लाइक गेट, और मतलब कुछ भी करके आप एक्सक्यूज़ ले सकते हो उस चीज़ का, बिकॉज it's your birthday. So yeah, that is an important day and it is important कि आप उस दिन खुश रहो और कुछ अच्छा करो, और जैसे कि बोलते हैं सब कि वो करो जो आप पूरा साल करना चाहते हो। तो luckily I'm shooting tomorrow, so hopefully if I'm shooting tomorrow I'll be shooting whole year. So manifesting things. जो आपके फैंस हैं हमेशा रील्स एडिट करते हैं आपके बर्थडे पे स्पेशली, मैं उनके लिए पहले से ही थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक कोलाज बना के गाइस मुझे एक लिंक भेज देना जिसमें मुझे सारे एक साथ दिख जाए, बिकॉज अलग अलग देखना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड आई डोंट वांट कि मैं किसी का भी मिस करूं। तो प्लीज़ हो सके तो एक ऐसा आपस में कम्युनिटी बना के जो भी सारे बनाए होंगे एक साथ मुझे भेज देना, तो आई मतलब मैं सब पे रिएक्ट करूँगी, सब पे रिप्लाई करूँगी। चलिए आप काम तो करें, बट इस बर्थडे में शायद आपके जो दोस्त हैं विशाल हैं सारे दोस्त होंगे सेलिब्रेशन में कुछ। मैं तो शूट ही कर रही होंगी, तो अगर देखते हैं अगर वो सेट पे आए तो, बट आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू। अभी विशाल से बात हाँ बिल्कुल बात हो रही है। ही इज़ डूइंग फाइन। बीच में कुछ फैमिली में किसी का हेल्थ का इशू चल रहा था, बट ही इज़ फाइन नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू। इमली से शुरुआत हुई थी इस सफ़र की, और काव्या हमने फिर साथ में किया। होपफुली फिर से काम करेंगे, और वैसे पर्सनल लाइफ में तो हम ज़िंदगी भर साथ हैं। और बहुत स्वीट सी बच्ची है, बहुत मेहनत करती है, और हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई। हमारे सीन्स बहुत अच्छे आएंगे, आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर हम जेनजी से कुछ सीख सकते हैं तो ये हमारी लर्निंग है, अगर जेनजी हमसे कुछ सीख सकती है तो ये हमारी लर्निंग है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। नया अवतार, नया किरदार, नई कहानी, सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू। थैंक यू। क्या है किरदार, थोड़ा बताइए। किरदार यही है कि एक छोटी सी फैमिली है हमारी, और कथा जो कि मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस शो की, तो उसके मैं मामा और ये मामी का किरदार निभा रहे हैं। बहुत ही स्वीट सी फैमिली है, बहुत ही स्वीट से लोग हैं, और जीवन को एंजॉय करते हैं, और अपनी कथा से, भांजी से बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि मैं मामा हूँ तो डबल मामा नाम आते ही रिलेट करते हैं लोग, शकुनी, कंस, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये डबल प्यार करता है अपनी कथा से, और मामी में एक माँ है तो ये माँ जैसे ही प्यार करती है। हाँ, मैं
जैसे इन्होंने कहा कि मामी और मामा हम लोग हैं, लेकिन हम लोग मामा मामी से बढ़कर एक माँ बाप की तरह उसकी परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची होती है। लेकिन एक छोटा सा परिवार है और कथा बहुत ही ओल्ड स्कूल, जैसे आपने अभी सुना भी होगा कि उसकी थोड़ी जो ओपिनियंस है थोड़े ओल्ड स्कूल है इन जेनजी सोल में, तो वो देख के हम दोनों को बहुत प्राउड फील होता है और हमें लगता है कि हाँ, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं आई है ना। वही कोशिश रहती है हमारी परवरिश। दो पीढ़ियों के आपसी मतभेद इसमें है। जी जी। तो आप लोग भी रियल लाइफ में आई एम श्योर मतलब जनरेशन से मिलते ही होंगे। क्या सबसे, मैंने प्रोड्यूसर भी पूछा था कि क्या मेन लगता है कि ज़्यादा सेंसिटिव है आज की जो जनरेशन है, जो जिनकी है, और पिछली पीढ़ी के प्रति? क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लाइक दर्शन जी ने वेरी ब्यूटीफुली सेड कि कोई किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, कोई किसी के बारे में राय नहीं दे सकता, आपके एक्सपीरियंशियल ही आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अगर हर पीढ़ी लर्निंग वाले मोड में है तो हम जैसे जिस आज उम्र के पड़ाव में, अगर हम जेनजी से कुछ सीख सकते हैं तो ये हमारी लर्निंग है, अगर जेनजी हमसे कुछ सीख सकती है तो ये हमारी लर्निंग है। आई थिंक लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप, चाहे आप किसी भी जनरेशन से हों। बिल्कुल, और सही गलत तो कोई होता ही नहीं है, उम्र के हिसाब से वो फिर सही गलत डिसाइड होता है। तो बिल्कुल दर्शन जी ने जैसा कहा था कि एडवाइस नहीं दे सकते हैं, अपने एज के हिसाब से सबको समझ में आती है चीज़ें। वो दोनों स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए कि अब आप बहुत पॉपुलर हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, के बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद आफिया भी बहुत पॉपुलर होगी। नहीं, वो पॉपुलर है वो आफिया अभी और हो जाएगी, और बहुत स्वीट सी बच्ची है, बहुत मेहनत करती है, और हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई, हमारे सीन्स बहुत अच्छे आएंगे, आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। क्यों? या बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा, और दोनों अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों अच्छे बच्चे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। यस, और हम भी बहुत अच्छे स्टार हैं। हम भी कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमको इनफैक्ट जेनजी की स्पिरिट के साथ मैच करके रहना पड़ता है। मैच करके रहना पड़ता बच्चे से आ रहे हैं, काव्या याद आती है, क्या कहेंगे आप? बात होती है अभी भी? हाँ बिल्कुल बात होती है। अभी ईद की पार्टी दी थी उसने अपने घर पे, कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और काव्या से मेरा ख्याल है कि मिशकत था, सुम्बुल, मैं और मेरे बेटे का कैरेक्टर जो करता था वरुण, वो थे, और हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया, खाना पीना खाया। जैसा मैंने पहले बोला कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है ना, क्योंकि जब एक अच्छा फैमिली बनती है, ये भी एक फैमिली होती है, और जब शो ऑफ एयर होता है उसके बाद भी कनेक्शन बने रहते हैं। कई दफ़ा नहीं होता, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा उम्र भर रहते हैं। शायद ऐसा सुम्बुल के साथ? बिल्कुल, कम से कम मेरे साथ तो सुम्बुल का हमेशा ही रहेगा, और इमली से शुरुआत हुई थी इस सफ़र की, और काव्या हमने फिर साथ में किया, होपफुली फिर से काम करेंगे, और वैसे पर्सनल लाइफ में तो हम ज़िंदगी भर साथ हैं ही। बट काव्या जिस तरह से ऑफ एयर गया, जी, आप खुश थे? खुश तो कोई भी नहीं होता, कोई भी, खुश होता है, इनफैक्ट कोई भी शो चला जाए ऑफर, तो कोई एक्टर कैसे खुश हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंत तो आता ही है, तो इट्स ओके। हालांकि जैसा आपने पहले बोला मामा मामी, क्योंकि मामा मामी हमेशा शो में तड़का डालने आते हैं, राइट? तो ये मामी कैसी है, मतलब छौंका मारने वाली है या बहुत? ये मामी बिल्कुल छौंका नहीं मारेगी, इनफैक्ट अपने हाथों से जलेबी तल के अपनी बेटी को खिलाती है। तो ये छौंके वाली मामी नहीं है, ये मतलब स्वीट सी मामी है। जैसे मैंने कहा कि ये मामा मामी सिर्फ रिश्ते से हैं, वरना वो माँ बाप ही हैं। बिल्कुल। ओके, लास्टली थोड़ा सोशल मीडिया, चूँकि जेनजी वाला शो है, तो आपसे जानना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आती है। रिसेंटली अभी आसिम रियाज का जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि रुबीना दिला के साथ उन्होंने फाइट किया, फिर वो उनकी कमेंट्स के बाद रुबीना की फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया, तो फिर आसिम रियाज ने उनको फिर से ट्रोल किया कि ये फेक आईडी बना करके तुम सिंपैथी गेन करो। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको कुछ आइडिया है? बिकॉज़ मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और मुझे कुछ, हाँ, इनफैक्ट आप हमें बता रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सुना है, बट जस्ट ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये कहना चाहेंगी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया हो, चाहे डिजिटल हो, या टूरिस्ट जेनजी हो, आप सामने वाले की सेंसिटिविटी और इमोशंस को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए ही बात करनी चाहिए, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द मुद्दा इज, सो आई कांट मच कमेंट।
हाँ बिल्कुल, मैसेज यही है कि बहुत मेहनत से काम हो रहा है, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे कैप्टन साहब बहुत अच्छे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। जैसा कि बताया गया कि यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का संगम है ये। अब ये भी महाकुंभ गया है प्रयागराज का, तो वो संगम हिट रहा, वो कुंभ मेला हिट रहा, ये भी हिट होगा। आप लोग देखिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और क्या। थैंक यू। बस जिस तरह आप लोग प्यार देते आए हैं इश्क सुभान अल्लाह में, मेहंदी वाला घर में, और अब ये कभी नीम नीम और कभी शहद शहद वाला भी प्यार बहुत सारा दीजिए, तो बहुत मज़ा आएगा। प्यार और आलोचना जो भी आपको जो समझ भी में आता आपको है ठीक लगे। दीजिए ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।